May I continue, please? Yes, sir. So this is the modern view of the atom. That atom is mostly has empty space. Atom is consisting of two regions or two constituents. One, it is the nucleus which is present at the center, which is positively charged. Inside the nucleus, two type of particles are present, it is proton and neutrons. And around this nucleus, there is a cloud electrons or a number of electrons are there which are revolving around the nucleus, and the region where you might find this electron which is of this type or it is in orbit. And if you see this particular picture, you found that this is the central part which is named to be as a nucleus, which is of course which is positively charged. And around this nucleus you can found that different colors type of colored circles are here. This is first, second, third, fourth and so on. You may call this as the first orbit, second orbit or third orbit. But in addition to that one, if you consider the atomic physics, these orbits or these shells are these energy levels. इनको क्या क्या बोलते हैं? ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते इनको ऑर्बिट भी बोलते. जैसा ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये ब्लैक कलर का तीसरा ऑर्बिट है और ये रेडिश कलर का जो है तो ये चौथा ऑर्बिट एंड सो ऑन. ये इनको जो है पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट भी बोलते हैं या पहला दूसरा तीसरा सेल भी बोलते हैं. लेकिन इनको जो है एटॉमिक फिजिक्स या अगर आप गुज़िश्ता सेमेस्टर का क्वांटम फिजिक्स भी पढ़कर आए तो you found that these orbits or these cells are called as K shell, L shell, M shell or N shell. So first cell it is called as K shell. Remember this one. Second one it is called as L cell, M cell, N cell and so on. Now after having seen the Bohr's theory, which is fundamentals postulates of this particular atomic model, it has certain postulates. If you remember your school days, I think you might have already considered or already seen the postulates of the Bohr's theory. But here, once again, we will go for the postulates of the Bohr's theory, because if once again the examination is in your online mode, just as a objectives, then some of the objectives will belong from these postulates. That's why in order to prepare in that particular way of examination pattern of MCQ or objective type, I think that the postulates of the Bohr's model of an atom are most important, because such type of MCQs will be asked from this one. But I think these postulates you have already seen in your last course of study. So what is the first postulate? Very simple. That atom, in an atom, electrons revolve around the nucleus, which is positively charged in a circular path, and that circular path is called as the orbit. क्या है पहला postulate? Postulate बोले तो in Urdu you are calling this as मफरूजा या मफरूज अजम्पशन. तो पहला अजम्पशन बोहर ने एटम की स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मॉडल है किसके ताल्लुक से? किसके ताल्लुक से है जी? बोलिए प्लीज, अनम्यूट एनीबॉडी ऑफ यू. किसके ताल्लुक से है ये मॉडल? अपन जो गुज़िश्ता 2 दिन से बात कर रहे, 4 दिन से बात कर रहे, किसकी बात कर रहे? एटम के ताल्लुक से. अपन जे थॉमसन मॉडल देखे जिसने बताया कि एटम ऐसा रहता, अंगूर के गुच्छे के जैसा रहता. फिर रुदरफोर्ड ने बताया नहीं वैसा नहीं रहता, बल्कि जो है तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो है जमघट है. और अच्छी तरह से जो है तो किसने बताया कि बेटर तरीके से है बोल के? प्लीज dear student, unmute yourself and tell me whether you are there or not. Farisha, are you there? And last model, it is given by the scientist Bohr's model of atom. Are you getting, please, Nadia? Yes, sir. So the first postulates of the Bohr's model of an atom states that in an atom, electron revolves around the positively charged nucleus in a definite circular orbit or in a definite circular path, and that path it is termed as orbit, or you may call this orbit as a shell. Getting, please? This is the first postulate. Second postulate, that each orbit या each cell has fixed energy.
and these circular orbit are known as orbital shell. That means when the electron is revolving in the first orbit, then the energy of this electron in that particular orbit is fixed. जैसा in the last time I have told you कि पहले ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी कितनी, E1 समझो मिसाल के तौर पर, या अगर मैं नंबर में बोलूं तो सपोज 2 MeV या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज देयर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखेंगे मिसाल के तौर पर, तभी वो जो है तो कौन से ऑर्बिट में रहेंगे, इन विच ऑर्बिट दे विल लाई. Please unmute and interact with me. Please. सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट और उसमें भी पहला, यानी कि पहले पूरे ऑर्बिट तो सर्कुलर ही है, पहला भी सर्कुलर है, दूसरा भी सर्कुलर है, तीसरा भी सर्कुलर है, लेकिन पहले में रहते वक्त एनर्जी मिसाल के तौर पर E1 रहेंगी. E1 एनर्जी जब तक रहेंगी जब तक उन्हें कहाँ रहेगा, पहले ही ऑर्बिट में रहेगा. अब अगर एनर्जी E1 से ऊपर बढ़ गई, E+1 E1+1 हो गई, तो उन्हें पहले ऑर्बिट में से जंप लगा के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, या और उससे आगे बढ़ गई तो तीसरे ऑर्बिट में जाएगा. और अगर E1 से ऑर्बिट की एनर्जी कम हो गई तो उन्हें पिछले ऑर्बिट में चलाएगा. यानी कि बोलने का मतलब कि हर ऑर्बिट की अपनी एक मखसूस एनर्जी है. वही इस पोस्टुलेट में बताया जा रहा है कि ईच ऑर्बिट या ईच सेल हैज व्हाट, energy, and these circular orbits are known as orbital shell, or you may call this at a energy level. Third postulates or third mafruza of this Bohr's model is that energy levels are represented by an integer. कौन से इंटीजर से, n is equals to 1 2 3 आपने पढ़ के आए लास्ट सेमिस्टर में. डू यू रिमेम्बर दैट? इसको क्या नाम से पुकारते, क्या नाम है पहले ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट का, क्या बोलते जी उनको, इफ यू रिमेम्बर? n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3. These are the energy levels, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, and these are denoted by an integer n is equals to 1 2 3 and so on, and these are called as the quantum numbers. Do you remember our last semester, please? Which you have? Yes. Yes. That means these energy levels are these cells are these orbits in which the electrons with a particular value of energy are revolving are terms as a first quantum number n is equals to 1, second quantum number n is equals to 2, third quantum number n is equals to 3 and so on. And that means these energy levels are given by n1, n2, n3 or 1, 2, 3, 4 and so on. The next postulates or next mafruza about the Bohr's model, that this range of the quantum number is start from the nucleus side with n is equals to 1. क्या मतलब जी from nucleus side बोले तो? Can you get please? क्या बताना चाह रहे, समझ सकते क्या आप? देखिए इधर क्या बताना है उनको, देखिएगा प्लीज. यानी कि ये ऑर्बिट, ये बीच में का क्या, न्यूक्लियस दिख रहा क्या आपको? प्लीज बोलिए, दिख रहा नहीं दिख रहा बोल. yes sir. अब ये इसके आगे ये जो मैं डॉटेड लाइन से उतार रहा हूँ, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है. यानी ये जो चौथे नंबर का जो पोस्टुलेट्स है आपको ये बता रहा कि n की वैल्यू जीरो नहीं रहेंगी कभी भी. n की वैल्यू कितनी रहेंगी, कहां से स्टार्ट होगा n बोले तो कौन जी? इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर, यानी कि इसको क्या नाम से पुकारते हैं अपन? क्वांटम नंबर. तो ये क्वांटम नंबर कहां से स्टार्ट होगा बोलता, कभी n की कीमत जीरो नहीं रहेंगी, n हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? 1 से. वन कहां से पकड़ना, ऊपर से पकड़ते नहीं आना, बल्कि कहां से पकड़ना, न्यूक्लियस के पास से. सबसे कम कौन सा नंबर रहेगा, n का सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रहेंगी? 1. यानी कि जो न्यूक्लियस के पास से शुरू होगी, यहाँ जहाँ मेरा पेन लगा हुआ है वो इट इज द फर्स्ट n1, ये n2, ये n3, ये n4, n5 एंड सो ऑन.
यानी कि न्यूक्लियस के बाजू से नंबरिंग शुरू होंगी। न्यूक्लियस के एकदम करीब का या पहला जो ऑर्बिट या पहला जो सेल या पहला जो एनर्जी लेवल रहेगा, उन्हें कौन सा क्वांटम नंबर रहेगा? 1. 1. That means this postulate states that the range of the quantum number, it starts from the nucleus side. That means n is equals to 1, and this n is equals to 1. It is the lowest energy level, सबसे कम एनर्जी लेवल, सबसे छोटा ऑर्बिट, पहला छोटा ऑर्बिट बोलने वाला सबसे पहला ऑर्बिट या लोएस्ट एनर्जी लेवल n is equals to 1, और फिर उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इनको असाइन भी करे नाम, क्या नाम असाइन करे? n is equals to 1 बोले तो कौन सा ऑर्बिट, कौन सा एनर्जी सेल? K. K. Is equals to 2 into L. K, L, and these are cells. That means these numbers or these alphabets are assigned to the principal quantum, sorry, not principal, to the quantum number 1, 2, 3, 4 as a K, L, M, N. And when this electron attains the lowest energy level, isn't it? When they attain the lowest energy level, at that time it is said to be at the ground state. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट जो है तो लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा, तब जो है तो उसको आप क्या नाम से पुकारेंगे? ground state. Ground state. You will say this as a ground state. यानी कि when n is equals to m, you can say that it is the ground state. चलिए please next. The electron in atom move from the lower energy level to the higher energy level by gaining the required energy. जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ग्राउंड लेवल में था एनर्जी E1 थी या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इन्हें क्या करेगा? जब वो एनर्जी ले लेगा, फिरने की वजह से ले लेगा या बाहर से आप एनर्जी देंगे या कोई प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इजाफा होगा, तो जनरली फिर उन्हें कहां से जाएगा? पहले कहा था लोअर एनर्जी लेवल में था, जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो उन्हें जंप लगा के कहां चले जाएगा? Higher. एनर्जी लेवल में चले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इन द एटम मूव फ्रॉम दी, और हमेशा जो है तो उसका मोशन कैसा रहेगा? इट विल मूव, अक्सर इट विल मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कब? लेकिन खुद ही नहीं, बल्कि क्या करके? बाय Gaining electron. by gaining the energy, required energy, and electron moves from the higher energy level to lower energy level by losing the energy. यानी कि पहले ऑर्बिट में था, एनर्जी बढ़ गई तो पहले ऑर्बिट में से जंप लगा के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में फिर रहा और एनर्जी उसकी मिली तो दूसरे ऑर्बिट से जंप लगा के कहां जाएगा? Next. तीसरे में जाएगा। ठीक है, अब तीसरे में जाने के बाद कोई प्रोसेस हुई, कोई अमल हुआ, रिएक्शन हुई, उसकी एनर्जी कम हो गई, तो फिर अब उन्हें तीसरे से उतर के कहाँ आएगा? नीचे सेकंड पे। यानी कि बोलने का ये मतलब है कि जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द एनर्जी, एंड जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो पॉसिबल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी बाय लूजिंग द एनर्जी। यानी जब एनर्जी लेगा तो दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे जाएगा, और जब एनर्जी लॉस करेगा, उसकी एनर्जी में कमी वाक़ होंगी, तो उन्हें हायर से उतर के कहाँ आएगा? लोअर पर। समझ में आ रही है बात? ऑल द पोस्टुलेट्स आर एक्सेप्टेबल टू यू, और आर यू गेनिंग दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से? पूरे पोस्टुलेट्स? यस सर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के बजाय अगर थियोरेटिकल एग्जाम होती है और आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बोर्ड्स मॉडल, give along with its postulates or give its two postulates or give all the postulates of the Bohr's model. Question is for 5 marks. Are you in a position to write this one please? Are you getting? अगर आपके पास नोट्स नहीं है तब भी आप इसको याद रख के लिख सकते क्या? Because I am repeating the postulates twice or thrice. Is it possible for you to understand, or may I repeat it once again? No sir. So let's go to this one. If you want to see the picture or the pictorial of this different energy levels or the atomic structure, you found that this is the picture. Can you see this one? What is this? Nucleus. This is the nucleus. This is the first orbit, and we will call this as n is equals to 1. Quantum number integer, n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, isn't it? And
जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज देयर. जब इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलता है उसको और एक नाम से पुकारते, क्या बोलते हैं उसको? फोटोन. And when this photon is emitted, energy, how much energy is given? E is equals to HF. hf. बोलिए. E is equals to h nu. बहुत सारे बुक में ये इक्वेशन कैसी लिखी हुई है? E is equals to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the electron with which it was moving in that particular orbit. जिस फ्रीक्वेंसी से वो अंदर घूम रहा था उसकी वो एनर्जी है, isn't it? तो इट इज द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिट. ये पहला एनर्जी, इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा. तो बात समझ में? तो डैट में, और जब हर एनर्जी लेवल से जब वो ट्रांसफर होता है तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम मैकेनिक्स ने गुज़िश्ता सेमेस्टर में ये बताया है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग और व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग from the one energy level to the another energy level, the amount of energy emitted by that electron, which is here termed as a photon, it is E is equals to h nu, or you may call this as E is equals to f, where h is the Planck's constant whose value is 6.66 या 67 into 10 raised to minus 34 joule second, and isn't it? And f is the frequency or with which it is moving in that particular orbit. I understand this one. Are you got this? of the Bohr's theory. किसकी बात चल रही? फिर एक बार अगर मैं जायजा लूं किसकी बात चल रही है अपनी गुज़िश्ता 2 दिन से? हम बात कर रहे हैं कि आइटम, हर एलिमेंट, चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, थायूरिया हो, यूरिया हो, या यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, अल्यूमिनियम हो, जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सब किसके बने हुए हैं? छोटे छोटे एटम्स के बने. ठीक है. हर एटम किसका बना हुआ है? कितने हिस्सों पर तकसीम है किसी भी एलिमेंट का? हर एटम 2 हिस्सों पर. पहले कैसे? अब ये एटम के स्ट्रक्चर के ताल्लुक से मॉडल चैप्टर हमारा किसको डिवोटेड है पूरा? This our entire chapter is devoted to the atom, because every element is consisting of large number of atoms, and regarding the structure and property of the atom, this is the first chapter. Do you remember? So how the atom was there? So regarding the structure and property of the atom, different scientists in a different period of time has given the different ideas. But up till now, the latest idea or the last accepted idea or last accepted model regarding the nature and structure of the atom, it is the Bohr's atom or Bohr's model of an atom. Yeah, you may call this as the Bohr's theory also. और या उसको आप क्या नाम दे सकते हैं दूसरा? Bohr's theory. किसके ताल्लुक से है Bohr's theory? अगर आपको कोई पूछे तो you may say Bohr's theory is regarding atom. And it is consisting of certain postulates. And one of the most important postulate is that atom of any element is consisting of 2 parts. One, it is the central nucleus, which is positively charged, and second part is electrons, which are revolving around this positively charged nucleus in kaise orbit? In circular orbit. Orbit is denoted as a quantum number, n is equals to 1, 2, 3, 4. These orbits are also called as the cell. You may call this as a first cell, second cell, or these orbits are also known as energy levels, because each orbit has a particular value of energy. These electrons, when they are present in the first orbit, they possess the particular value of energy. Even when the energy of that electron is increases that even, then they jump from the first orbit to the second orbit, and in that second orbit energy is suppose E2. Suppose the energy of the electron in second orbit is increases beyond E2, then they jump from second orbit to third orbit, isn't it? And this process goes on. Suppose during the reaction, or suppose some in chemical or nuclear reaction, the energy of the electron in the third orbit decreases than E3. समझो तीसरे ऑर्बिट में था, तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी E3 थी, समझो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी. अब एनर्जी जो है तो इलेक्ट्रॉन की तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गई मिसाल के तौर पर. तो अब वो इलेक्ट्रॉन 8 में तीसरे ऑर्बिट में रहेगा क्या? नो, इट विल कम फ्रॉम थर्ड टू second, and so on. That means when the energy is increases,
it moves or it jumps to the higher level, and when the energy decreases, it comes back from higher level to lower level. lower level. Half you have got this one. So these are Yes, sir. some limit. These are some or few postulates. Large number of postulates are there, but these are few important postulates of the Bohr's model of the atom, which are important not from only examination point of view, but these postulates are also very useful for the further study in the field of physics. Now limitations of the Bohr's model. उसकी कुछ लिमिटेशंस, कुछ खामियां या कुछ नुक्स क्या था, क्या नहीं बता सक रहा एटॉमिक मॉडल, ताकि फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने जन्म लिया. तो द फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट उसका जो है तो बंद रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम इज वाज दैट दिस मॉडल इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज़ीमान इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम. याद आता है कि जी अपना ज़ीमान इफेक्ट हुआ कि अपना 5वें सेमेस्टर में नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट पढ़े अपन ने. क्या था जो कि when this electron in the orbit they come with the magnetic field, then the scattering or spectrum of the line is taking place. It is called as the Zeeman effect. पुराने अगर आपके पास वीडियो है या क्लास का अगर नोट्स याद आते होंगे तो देखिए, ज़ीमान इफेक्ट नाम की एक चीज रहती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड मिलती है इलेक्ट्रॉन को तो उनकी स्प्लिटिंग होती है, यानी कि ऑर्बिट की स्प्लिटिंग होती. दैट स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिट इट इज कॉल्ड एज द ज़ीमान इफेक्ट, या स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, not orbit but splitting of the spectral lines, it is called as Zeeman effect. Normal Zeeman आता क्या थोड़ा बहुत क्या एक्सप्लेन करने का? मदिया, अर्शिया, अफीफा. नो सर. तो Zeeman effect अपन ने पढ़े गुज़िश्ता सेमेस्टर में. हुआ क्या? खाली क्या बोलो. हाँ यस हुए सर. हाँ, तो Yes, sir. Zeeman इफेक्ट कैसा होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल. एक स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ की है समझो 57-70 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम जो मैग्नेटिक फील्ड को जब सामने जाता तो यही एक स्पेक्ट्रल लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो जाती. एक होती जो है तो 57-68, एक होती 57-70. तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द एटम और इंटरेक्शन ऑफ दैट वन ड्यू किसके साथ इंटरेक्शन विथ, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड. This is called as the Zeeman effect. तो ऐसा क्यों होता भाई? एटम था, अभी तक इन्हें बोल रहा एटम है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में फिर रहे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गए, तो वो उनकी जो जंपिंग की वजह से होती. उनकी जंपिंग कब होती? जब उनको एनर्जी मिलती या एनर्जी कम होती, और इनके जंपिंग के नतीजे में स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते. ऐसे आपको जो स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है ना, अपन आगे भी देखेंगे, अपने गुज़िश्ता उसमें भी देखे थे कि ड्यू टू द जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एनर्जी लेवल टू द एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रा इज फॉर्म. स्पेक्ट्रा समझता ना आपको? किसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रा? याद आता है क्या आपको? ये ऐसा लाइन बताए थे ना, देखे क्या अपन ने? याद आता आपको? यस सर. इसको क्या बोलते हैं आप? स्पेक्ट्रम बोलते हैं आप. स्पेक्ट्रम. हाँ, तो ये स्पेक्ट्रम किसके वजह से होता? कौन जन्म देता? काय की वजह से स्पेक्ट्रम होता बोलते हैं? उसका बेसिक क्या है? ये स्पेक्ट्रम आता काय की वजह से? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते? एक ऑर्बिट से, अपन अभी बोले ना, न्यूक्लियस में जाते. न्यूक्लियस में नहीं. रिमेम्बर दिस थिंग, द spectral lines या spectrum of the any atom or any element is obtained due to the jumping of electron from one energy level to the another energy level, not nucleus. Remember one thing, electron कभी न्यूक्लियस में रहता क्या? अपन नहीं रहता. हाँ, तो एक एनर्जी लेवल से, यानी कि पहले एनर्जी पहले में था, एनर्जी बढ़ गई तो फिर अब पहले में नहीं रहता, दूसरे तरफ चले जाता है कि नहीं? जैसा आम आदमी की है ना खासियत, भाई पहले एक रूम में रहता था, जैसे कुछ जेब में पैसे आए कि दूसरा बना था, है क्या नहीं? फिर और थोड़े पैसे आए तो फिर फर्नीचर करता, और थोड़े पैसे आए तो कुछ दूसरा और एक आधा एलसीडी टीवी लेता, है क्या नहीं? क्यों? जैसे जैसे एनर्जी उसकी बढ़ती वैसा वैसा उन्हें आगे जाता, और जैसे जैसे एनर्जी कम हुई तो फिर क्या करता और वापस आता ना. आम दिन में अपन देखे ना, आदमी बढ़ता बिजनेस में, कभी कभी जो है तो धोखा हुआ कि फिर अपन ऐसे भी लोग देखे जो बहुत आगे जा रहे थे और बाद में रफ्ता रफ्ता क्या हो गए,
पीछे भी चले गए। देखा होगा आपने आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग। Am I correct? This, no doubt this example is not perfectly fit with this one, but I am interested to say amount of money with the energy, यानी कि एनर्जी बढ़ी तो आगे 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 ऑर्बिट में जाते, और एनर्जी कम हुई तो निचले निचले नीचे आते। ऑर्बिट में आते। तो इनके ऊपर ऊपर जाने या इनके नीचे नीचे जाने की वजह से ऐसे 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 लाइंस तैयार होते। वही लाइंस, वही जो है तो बिखराव, दैट इज कॉल्ड एज इन आवर फिजिक्स लैंग्वेज स्पेक्ट्रम। और एक लाइन क्या कहलाती? स्पेक्ट्रल लाइन। और ये लाइन किसकी रहती? लाइट की रहती। तो लाइट को क्या रहती? वेवलेंथ रहती। तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है तो स्प्लिट हो गई। बोले तो क्या क्या स्प्लिट हो गई? एक स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ थी 5790 एंगस्ट्रॉन यूनिट्स। अब जब स्प्लिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड उसको लगाने की वजह से, तो एक 5790 की एक लाइन कितने हिस्सों में तकसीम हो गई? मिसाल के तौर पर समझो 3 में हो गई। समझो एक 5790 वाली, एक 5770 वाली, एक 5792 वाली। तो ये एक लाइन कितने हिस्सों में तकसीम हो गई? मिसाल के तौर पर 3 उसमें। 3 में। तो ये जो स्प्लिटिंग लाइट है किसकी वजह से हुई? कौन आया एटम के साथ? किसको, कौन सा इलेक्ट्रॉन। Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड लगाए। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वी आर कॉलिंग दिस एज व्हाट? Zeeman effect. रीमान इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? ज़ीमान इफेक्ट क्यों वजूद में आया? ये बोर्स थ्योरी के पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अपन ने गुज़िश्ता सेक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन देखे थे। कब? जब वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। डू यू रिमेंबर? महिदिया, मदिया गेटिंग प्लीज? अफीफा, Yes, sir. मुस्कान, ऑल ऑफ यू। तो बोहर्स थ्योरी का जो लिमिटेशंस है, उसकी जो खामी है, उसका जो फेलियर है, क्या एक पहला फेलियर क्या है कि ये ज़ीमान इफेक्ट का तशफ़ी बख्श एक्सप्लेनेशन नहीं करती। नहीं। This Bohr's model is unable to explain the satisfactorily the phenomenon of Zeeman effect. Getting? Second, it is also failed to explain the Stark effect. जो अपन ने लास्ट टाइम देखे थे कि स्टार इफेक्ट किसकी वजह से होता? इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम। ये भी स्टार इफेक्ट भी ये जो है तो वो नहीं करता। सेकंड, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कुछ तस्वर है क्या जी? बोहर्स मॉडल में दिख रहा क्या? क्या बोलता था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। हुआ क्या अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? Yes. हाँ, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि उसका वैल्यूएशन करता, उसके खिलाफ जाता। एंड दिस Bohr's model is also not in a position to explain the spectra obtained from the larger atoms. So these are the limitations or failures or drawbacks of the which model? Bohr's. Bohr's model. बोहर्स मॉडल। But even though it has few drawbacks, but this model is fundamentally or universally accepted up till now, because this model is now in action. अभी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है? लेकिन बोहर्स मॉडल ही है, क्योंकि Bohr's बोहर्स मॉडल ने ही सबसे तशफ़ी बख्श जो है तो एटम के स्ट्रक्चर के ताल्लुक से एक्सप्लेन किया। अगरचे के 2-3 फेनोमेना जो अभी यहाँ पर अपन ने गिनाए वो उन्हें एक्सप्लेन नहीं करता। वो बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में जब क्वांटम मॉडल आया, और जब बाद में जो है तो हमारे आइंस्टाइन ने जो है तो कुछ इक्वेशन रखे, तब वो इफेक्ट जो है तो क्लियरिफाई हो गए। लेकिन इसके बाद भी आज की डेट में यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल रिगार्डिंग एटम इज बोहर्स मॉडल। ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल प्लीज। तो अब बोर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन फिरता, उसको रेडियस रहता, सब रहता। तो डिपेंडिंग अपॉन द दिस वन, नाउ we have to find out the Bohr's formula. So depending upon the postulates of this Bohr's theory, क्या थे postulates? Bohr drive the formula for the radius, क्योंकि अपने गोल घूम रहा तो रेडियस रहता होगा कि नहीं जी? अभी ऐसा स्ट्रक्चर है एटम, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है जितना? ये क्या बोलना है इसको अब? रेडियस। तो फिर अब रेडियस भी है। अच्छा, इन्हें कहा ही ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है जी? ये क्या है? ये क्या है लाल? सर्कल है, ऑर्बिट। level. क्या रहेंगी इसको? अभी पढ़ क्या है? हर ऑर्बिट में अपनी एक एनर्जी है कि नहीं?
अभी पढ़ के आए ना? Yes. हाँ, कि पहले एनर्जी E1, दूसरे में एनर्जी E2, तीसरे में एनर्जी E3 and so on. So depending upon the postulates of the Bohr's theory, the scientist Bohr also derived the formula for the radius of the orbit and also derived the formula for the total energy of the electron in the orbit. Now consider, अब फर्ज करो कि ये एक एटम है, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका न्यूक्लियस का चार्ज है समझो Ze एंड इसका मास है समझो कैपिटल M. Z बोले तो एटॉमिक नंबर, बोला ना मैंने उस दिन, Z बोले तो क्या उस दिन बोला Atomic number. एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 बोले तो किसका होगा एटॉमिक नंबर ये? यस, अर्शिया 1. क्या बोलना है अर्शिया को? क्वेश्चन है क्या कुछ अर्शिया के पास? हैंड रेस्ट किए. गलती से सर. Okay, so let's go to this one. Consider an atom. फर्ज कीजिए, अब ये फार्मूला निकालने के वास्ते फर्ज कीजिए कि एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव चार्ज Ze है, Z इज इक्वल टू 1 है. यहाँ इलेक्ट्रॉन है जिसका निगेटिव चार्ज है. ये पूरे इसकी जो है तो मास जो है तो इलेक्ट्रॉन की समझो स्मॉल m है, और ये जो ऑर्बिट का रेडियस है सपोज इट इज स्मॉल r. क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगी कि मास ऑफ द एटम ज्यादा रहेंगी? Mass of atom. हाँ, यानी कि स्मॉल मास जो है तो कम रहेंगे, यानी कैपिटल मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल मास, यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयरफॉर न्यूक्लियस इज स्टेशनरी एंड मास ऑफ द न्यूक्लियर डज नॉट कम इनटू द कैलकुलेशन. लिहाजा अब अपन क्या बोलते हैं इसको फिरने के वास्ते क्या होना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके दरमियान रहेंगी? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. लिहाजा दिस इज गिवन बाय, मालूम है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फार्मूला है? 1/4 pi epsilon naught Ze इंटू चार्ज, ये मास इंटू चार्ज इंटू रेडियस स्क्वायर, बराबर है. ये फार्मूला कहाँ से आया जी? डू यू रिमेम्बर दिस फार्मूला इन योर इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक यू हैव सीन? याद रहेगा ये फार्मूला? क्या है ये, काय का फार्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन. लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आती? mv²/r है क्या नहीं? सेंट्रीएस टू गोल फिरने के वास्ते सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती, वो कैसे देते? mv²/r. लिहाजा ये दोनों बराबर बराबर रहने के नहीं. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन देता बोला मैंने पहले ही बोला, कौन देता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड, मेरे साथ बोलते रहिए, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. लिहाजा ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो. क्या होगा इक्वेट करे तो? mv²/r इज इक्वल टू दिस वन. इसको अपन ऐसा कर सकते क्या? क्या क्या कटेगा, क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट postulate mv is equal to nh/2 pi. Therefore v is equal to nh/2 pi rm. लिहाजा v square from this one is equal to n square h square 4 pi square r square m square. Substituting this value of v square in this equation, क्या आएगा? m/r, this entire v square like this. यहाँ पे दिख रहा क्या? प्लीज समझ रहे क्या आप बात को? यस सर. हाँ, यहाँ रखे, ये जो v की कीमत है यहाँ रखे, mvr यहाँ रखे, m/r जैसा कैसा v की कीमत n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर दिस वन यहाँ पर भी रखे. क्या रहेगा? बहुत सारा कट जाएगा, बचेगा. यहाँ से r की अगर इक्वेशन लिए तो क्या आएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर epsilon naught अपॉन pi Ze स्क्वायर अपॉन m. This is the required formula for the radius of the. तो इसके अंदर क्या है? n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ एटम. नंबर. क्या कीमत रहती है इसकी? 1 2 3 4 बोले ना अपने क्वांटम नंबर. h क्या? बोलिए, अनम्यूट करके बोलते रहिए. h क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. पाई की कीमत मालूम. e क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. m क्या? Mass of इलेक्ट्रॉन. अब अगर पहले ऑर्बिट ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. लेकिन अब n के वास्ते कैसा है? z इज इक्वल टू 1 है, तो फिर ये ऊपर की इक्वेशन कैसी बनेगी? 1s2 दिस वन अगर रखे, पहला ऑर्बिट के वास्ते क्या रखना पुणे? n क्या लेना पहले ऑर्बिट के वास्ते? 1 रखे, h की कीमत रखे, एप्सिलॉन नॉट की कीमत कांस्टेंट रहती, पाई की कीमत अपने को मालूम है. E बोले तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन की मालूम है 1.6 into 10⁻⁻19. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 9.1 into 10⁻31. ये पूरा करे तो मास ऑफ द रेडियस